ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਮੁਖ ਉਚਰੇ ਸਾਸਰ ਖਟ ਕਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੇ ਬਦਰੋ ਸੁਣੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਬ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੂੰ ਰਹਿ, ਔਰ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਇਸ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ? ਅਬ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਬ ਪਾਣੀ, ਬਾਏ ਹਵਾ, ਤੇਜ ਅਗਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼। ਅਬ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਪਵਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਬ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਐਸੀ ਰਹਿਤ ਰਹੋ ਹਰ ਪਾਸਾ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲਮਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਰੋਧੀ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ? ਪਰ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਲ ਤੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਉ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਅੰਧਲੇ ਦੈ ਸਿਰ ਮੂੰਡ ਕਟਾਇਆ, ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਭਇਆ। ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਤੂੰ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਅੱਗ ਤੇ ਜਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਤੋ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਰਸ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਵਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਝਲਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਨ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਤਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਪ੍ਰਥਮ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਣ ਲੈ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਿਹਾ।
पौन गुरु पाणी पिता माता धरत महत। ये पूजन योग मां है। बई क्यों पूजन योग मां है? भी इहदा जिगरा बहुत वड्डा है। समुची कायनात की उत्पत्ति मिट्टी तो है, क्योंकि मिट्टी तो ही जीवन चलता है। खाक नूर करदन आलम दुनिया है। इस्लाम ने इस तरीके की वंड की है कि देवतियां नूं खुदा ने नूर तो बनाया है ते मनुखां नूं खाक तो बनाया है। वो नूरी ने, असी खाकी हां। ऐसी उन्होंने व्याख्या की है। समुचा जगत खाकी है ते देवते जिहड़े फरिश्ते ने वो नूरी ने। इकबाल कहता है कोई सिर्फ खाकी नहीं, कोई सिर्फ नूरी नहीं। और साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज आखिरी फैसला साडे सामने रख दें, कोई सिर्फ नूरी नहीं ते कोई सिर्फ खाकी नहीं। खाक नूर करदन आलम दुनिया है। तिलंग मल्ला पंजवा साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज देवा। समुचा जगत परिपूर्ण परमात्मा ने खाक तो ते नूर तो बनाया। खाक नूर करदन आलम दुनिया है। आसमान जिमी दरख्त आब पैदाइश खुदाए बंदे चश्म दीदन फनाए। तो वो नूरी ने, वो खाकी ने इस तरह की वंड साहिबा ने नहीं मनी। मुख्तसर अर्ज करिए, धरती का गुण की साहिब कहते धरती जननी है, हर जीव की जननी है, मां है। जिहड़ा बंदा बुढ़ा है, जे विचार करिए कुछ दिन पहले जवान सी, ते जिहड़ा जवान है कुछ दिन पहले बच्चा सी, जिहड़ा बच्चा है कुछ दिन पहले मास दा लोथड़ा सी, ते जिहड़ा मास दा लोथड़ा है कुछ दिन पहले बिंद सी, उस तो पहले कुछ दिन पहले खून सी, खून तो पहले खुराक सी, खुराक तो पहले मिट्टी सी, मिट्टी तो खुराक चली, खुराक तो खून बनया, खून तो बिंद बनया, बिंद तो मास दा लोथड़ा बनया, बच्चा बनया, जवान बनया, बुढ़ा बनया, फिर मिट्टी विच। कबीर धूल सकेल के पुड़िया बांधी दे, दिवस चार को पेखना अंत खे की खे। पसारा मिट्टी तो, उत्पत्ति मिट्टी तो। गुरु नानक देव जी महाराज ने पूजन योग मां क्यों कह दिता? माता धरत महत, इति पूजन योग मां। कोई मासूम बच्चा मां दी गोद विच किधरे मल मूत्र कर दे, मां औखी हो सकती, तू मेरे कपड़े खराब कर देते, औखी हो सकती। धरती औखी नहीं होती। समुचे जगत का गंध अपने विच ले लेंदी है, जज्ब कर लेंदी है। जब पैदा मैं कीता तो हुण रखना भी ते अपनी गोद विच है, और कित्थे। बच्चा सौ जाए सुते हुए वास्ते ते मां दी गोद है, पर जिहड़ा हमेशा दी नींद सौ जाए उस वास्ते धरती दी गोद है। वो फिर धरती च समा सकता है, होर किधरे नहीं। ऐसे नूं फिर धरती थां दे सकती है, होर कोई थां नहीं दे सकती। पालना भी धरती तो हो रही है। जो कुछ असी खांदे पींदे सब धरती देंदी है, जो कुछ असी हंडांदे हां सब धरती देंदी है। इस तरह दीयां खूबियां वेख के गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने माता धरत महत, इति पूजन योग मां ये धरती। तो अब तेज बाय पृथ्वी आकाशा। कबीर कहने पहले तू पृथ्वी का गुण लै कि परोपकारी बिरती, विशाल जिगरा, खिमा की भावना, निर्माणता, ये धरती का गुण है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसका खुलासा किया है गालबन राम कली राग विच। दयाल देव गोविंद माधव सुन संत ना की रीत,
महाराज कहते हैं मेरे कोलों संत जना की रीत सुन, भगत जना की वो किवें रहिंदे। मन मेरे राम रो नित नीत, दयाल देव गोविंद माधव सुन संतना की रीत। भाई संतां दी रीति मैथों सुन। की रीत है? आप कहते शस्त्र तीखण काट डारियो, मन न कीनो रोस, काजुआ को लै सवारियो तिल न दीनो दोष। मनुख ने तिखे जिहा शस्त्र दे नाल दरख्त नूं कट दिता और उस कट्टे हुए दरख्त दी बन गई बेड़ी, नौका। जिसने कटिया सी अज उसने दरिया तो पार होना, तो चरण थले उगा बैसियो, शर्म न रहो शरीर, महासागर न व्यापे खिने उतरियो तीर। और जिन्हें दरिया तो पार होना पहले पैर रखने सन, बेड़ी च उसने पैर रखे, बैठ गया बेड़ी विच। ये बेड़ी की है? कुछ दिन पहले इसने एक दरख्त कटिया सी, तो किसी कारीगर ने उसकी अज बेड़ी बनाई है, कि जिसने कटिया है उन्होंने भी ये दरख्त पार पिया करता है। जिन्हें कटिया उन्होंने भी ये लक्कड़ किनारे ते लांदी पई है। संत दा जिगरा इतना महान है, जो कट दे, जो टुकड़े टुकड़े कर दे, जो बंद बंद भी कट दे। रसना तो उस वास्ते भी सराप नहीं भी उसकी कुल तबाह होवे, बर्बाद होवे, इस तरह का वचन नहीं। बड़ा जिगर है। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, विष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत। साहब कहते जिहड़ी जमीन है इहदे ते चंदन का लेप कर दईए और फुल फल इनू धरती नू भेंट करिए, अतर सेंट छिड़क दईए, तो ये कोई हंकार विच आके फुलदी नहीं। ते जे इहदे ते गंदगी सुट दईए तो कोई श्राप नहीं देंदी, सदा एक रस। साहब कहते धरती वाला गुण भगत कोल होंदा है। चार बंदियां ने उपमा कर दी तां ठीक, जे चार बंदियां ने निंदा कर दी तां ठीक। किसी ने गंदगी सुट दी तां ठीक, किसी ने चंदन ते सेंट अतर छिड़क दिता ते ठीक। धरती सदा एक रस। जो अगर चंदन वाले नूं ते वर दे देवे ते विष्टा सुट्टण वाले नूं श्राप दे देवे, वो बंदा व्यापारी है, संत नहीं है, भगत नहीं, तो व्यापारी है। विष्टा मूत्र खोद तिल तिल, मन न मनी विपरीत। विपरीत उसने नहीं धारण की थी। इसने गंदगी क्यों सुटी? तो कबीर कहते ने ऐ बंदे तेरे अंदर निर्माणता इतनी चाहिए, इतना विशाल जिगरा चाहिए, तो दूजे की गल इतनी सहन कर सके। मनुख दूजे की उपमा भी सहन नहीं कर सकता, दूजे की निंदा भी नहीं सहन कर सकता। चार बंदे उपमा करन लग पैण कि बंदा सोचता वाकई हुण मेरे जैसा कोई नहीं, बंदा भुल जाता। ते चार बंदे निंदा करन लग पैण ते सुकड़ जाता, औखा हो जाता। एक ही हो गया। तो ये जिहड़ी अवस्था है समझ लेना चाहिए, इसने धरती तो कोई गल सीखी नहीं। धरती सदा एक रस है। कबीर कहते ने धरती का यह गुण अपना ले और फिर तो पानी की पवित्रता ले। पानी अगर ना होवे तो जगत की गंदगी धोनी बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। तो साहब कहते निरा तो मिट्टी तो थोड़ी बना है, पानी तो भी बना। तो तेरे विच पवित्रता चाहिए। पवित्रता तेरे बोलां च, पवित्रता तेरे किरदार विच, पवित्रता तेरे विचारां च। ये सफाई चाहिए, ये साफ सुथरापन चाहिए। इवें परमात्मा ने तैनू जल दे नाल नहीं बनाया, जिहड़ा पानी नाल बनाया है। इस तो कुछ काम भी ले, इस तो प्रेरणा भी ले, पर निरा पानी नहीं, तू हवा भी है। ते हवा दा कम की ये सदा गतिमान है, चलती है, रुकती नहीं।
फुर्तीली है। ऐ मनुख तू आलसी ना बन, सदा फुर्तीला बन। भज दौड़, समुचा संसार दौड़ रहा है, ते जे ना दौड़िया ते रह जाएगा। साहब कहने दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए। ए दिन सूरज चल रहा है, जमीन चल रही है, ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे सब चल रहे ने, ते ए बंदे इस चलती हुई जमीन के उत्ते जे तू टिकना है रहना है तो तेनू भी चलना ही पड़ेगा। हाथ धर के नहीं बैठेगा, रह जाएगा, पछड़ जाएगा। साहब कहते नहीं गतिमान हो, सब कुछ चल रहा है इत्थे। कहते ने परमात्मा नूं प्राप्त करने वास्ते टिकना पैंदा है, संसार दे विच कुछ प्राप्त करने वास्ते भटकना पैंदा है, चलना पैंदा है। ये दो रस्ते ने अलग। परमात्मा निश्चल है, ये जो सब कुछ चल रहा है, धर्म ग्रंथ कहते ने कि सब कुछ जिहड़ा चल रहा है किसी टिके हुए ते चल रहा है। वो टिकिया उन्होंने निश्चल किया, टिकिया हुआ, बाकी सब कुछ चल रहा है। ते निश्चल की प्राप्ति करनी है तो निश्चल हो जा, टिक जा। ते जो भज रहा है, दौड़ रहा है, उहदे चों तू कुछ लभना है तो फिर भज दौड़। भजन दौड़न की जाच बंदे ने सिख लई है, टिकण की जाच भुल गए, बिल्कुल भुल गए। भजना इसनूं आउंदा है, दौड़ना इसनूं आउंदा है। कहते बिना दौड़िया संसार नहीं मिलता, बिना टिकिया निरंकार नहीं मिलता। कभी बगौर मुताला करके देखा, भज के निरंकार नहीं मिलेगा। तुसी आखो भजना है, जिवें भज दौड़ संसार वास्ते, इस तरह की भज दौड़ रब नहीं मिलता। रब ते मिलता पुरखा चौखड़ा मार के बैठ जा, प्रभु दे गीत गा, वाहिगुरू वाहिगुरू दी धुन अलाप। ते ये जिहड़ा चल रहा है मन, इनू रोक, बस इन्नी गल है। रुकण नाल मिलेगा, चलण नाल नहीं। जगत संसार विच प्राप्त होवेगा चलण नाल, पर निरंकार जिहड़ा है प्राप्त होवेगा निश्चल होण नाल, टिकण नाल। तो टिकण दी गल बंदा भुल गया। इस वास्ते देखण दे चाहुंदा बंदे कोल संसार है, बंदे कोल निरंकार नहीं है, बंदे कोल परमात्मा नहीं है। ये गल मनुख भुल गए। कबीर कहंदे ने तू संसार विच रहना है क्योंकि तू कुछ संसारी भी है, और इस वास्ते तेरे च फुर्तीलापन चाहिए, आलसी नहीं चाहिए। हाथ देते हाथ धर के बैठे आलसी होने, ऐसा नहीं चाहिए। तू पवन तत्व तो प्रेरणा ले, फिर तू आकाश तो प्रेरणा ले। आकाश समान रूप दे सारियां दिते व्यापक है, तेरी दृष्टि समान होनी चाहिए, वितकरियां भरी नहीं। आसमान की दृष्टि च कोई वितकरा नहीं, ये सारियां दे उत्ते समान है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने गल खोल के लिखी। जब बंदा समान दृष्टि का मालक हो जाता है तो समझ लो आकाश तत्व का गुण उसदे च प्रगट हो गया। जब बंदा निर्माण हो जाता है तो धरती का गुण प्रगट हो गया। जब बंदा पवित्र हो जाता है आचार करके विचार करके तो पानी का गुण प्रगट हो गया। जब बंदा फुर्तीला हो जाता है आलसी ही नहीं है, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं भी निंद्रा भुख ते आलस ये मनुख के हाथ च है। जितना वधाओ वध जाता है, जितना घटाओ घट जाता है। नींद भुख ते आलस ये उत्ते मनुख जितना चाहे विस्तार कर सकता है, जितना चाहे घटा सकता है। निंद्रा आलस भुख वधांदे जाओ वधदी जाएगी, कोई सीमा ही नहीं, घटांदे जाओ घट जाएगी। मनुख दे अपने हाथ विच। तो जब बंदा फुर्तीला हो जाए तो उसने पवन तत्व का गुण प्रगट कर लिया। जब बंदे की समान दृष्टि हो जाए तो समझ लो आकाश का गुण उस प्रगट हो गया। तेज अगन, अगन तो की प्रेरणा लेनी है। बंदा समान दृष्टि का भी हो जाए, बंदा पवित्र भी हो जाए, बंदा निर्माण भी हो जाए, बंदा फुर्तीला भी हो जाए, पर बंदे के अंदर वीर रस ना आवे, जोश ना आवे, अगन तो जोश लेना, तो ये सारे गुण रह नहीं सकते, बर्बाद हो जाएंगे, मिट जाएंगे। हिंदुस्तान विच ये गुण करीबन करीबन बोधियां जैनियां जोगियां कोल हैगे सन। अग वाला गुण नहीं सी, अग वाला, तो हिंदुस्तान गुलाम हो गया।
और न समझना अज भी गुलाम नहीं। आजाद कौमां अपनी बोली के आसरे ते जींदियां ने, अपनी संस्कृति के आसरे ते जींदियां ने। मुर्दा बंदा उहदे कोल ना अपनी संस्कृति होवेगी ना अपनी बोली होवेगी। जिंदा कौम जिथे भी चली जाएगी अपनी संस्कृति मिटन नहीं देती। तो जो मुर्दा हो जाता है वो मिटे है। इस सिलसिले च मैं देखदा कि ठीक है सिख भावें बहुत अगे बहुत अगे बहुत अगे हर पहलू च अगे है, पर मिटन दे च भी अगे है, ते बर्बाद होने दे च भी अगे है, इस संस्कृति नूं नेस्तो नाबूद करन दे च भी अगे है। कोई मनुख अपनी इतनी छेती ना अपनी सभ्यता छड्डदा है ना अपनी बोली छड्डदा है जितनी छेती सिख छड्ड दिंदा है। समुची दुनिया विच भ्रमण करो, चाइना तो निकले हुए चीनी लोग अपनी सभ्यता दे च ने, अपनी बोली दे च ने, अपने धर्म दे च ने। सिख कोल नहीं है। ये कहंदा मजबूरी है, कुछ भी मजबूरी नहीं। जे वो अपनी चीनी भाषा दुनिया दे जिंदा रख सकते हैं ते अपनी लिपि नूं भी जिंदा रख सकते हैं। इनू गुरमुखी विच लिखदियां भी शर्म आउंदी है, पंजाबी बोलदियां भी शर्म आउंदी है। इत्थों ही स्पष्ट होया मुर्दा है, मर चुके, जिंदगी की कोई गल ही नहीं। अगन जोश भी चाहिए, वीर रस भी चाहिए, और ये जोश ठंडा पै जाए अग ही नहीं तो ऐसे लोगों को कहते कि ठंडा पै गया। तो ठंडा कौन पै जाता? मुर्दा। मुर्दे विच गर्मी नहीं होंगी, ਉਹਦੇ पैर वेखे जाते हैं, ਉਹਦੇ हथ वेखे जाते, ठंडा पै गया। जो ठंडा पै गया मुर्दा, जिहदे च अगन वाला जोश ही नहीं, वो मरण तो पहले ही मर गया। इतनी मैं अर्ज कर दिया, मौत उसकी हो गई। हुण इसनूं जिवाना बड़ी औखी गल है। मैं अक्सर अर्ज करदा होना, सुते उहनूं तो जगा लोगे, मरे हुए नूं किस तरह जगाओगे? कई मर चुके हैं, बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं। कूकदे रहो, खपदे रहो, गल नहीं बनेगी। भगत कबीर कहंदे नहीं, इन्हां पंजां तत्तां दी कला तेरे विच होनी चाहिए। पिछले दिन हिंदुस्तान विच बड़ा रोला एक पिया, जिसका जवाब मैनूं थां थां ते देना पिया। तो कहण लगे जिहड़ा परम संत हुंदा है, तोप तलवार बंदूक चलाना उसका काम नहीं हुंदा। ਉਹਦਾ ते कम है सिमरन करना, प्रभु नाल जुड़ना ते प्रभु नाल जोड़ना। और जो तोप तलवार की गल करे, तीर की गल करे, वो एक सिपाही हो सकता है, सूरमा हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता, अवतार नहीं हो सकता। ये प्रचार इतने जोरां नाल से और तूफानी ढंग नाल, जिहदा अगर कौम मुकाबला ना करती तो खिमा करनी, साडे उपरों तूफान लंघ जाना सी। पर कौम दे कुछ जिंदा बंदे सन, जीवदे जागदे बंदे सन, वो अगे आ गए। हर शहर दे उन्हां दा यही प्रचार से, जो तीर की गल करे, तलवार की गल करे, बंदूक की गल करे, लड़ाई की गल करे, सूरमा है। गुरु थोड़ी है, संत थोड़ी है, भगत थोड़ी है। भगत किस तरह आउंदे ने, संत किस तरह आउंदे ने, उन्होंने व्याख्या थां थां ते करनी शुरू की। अगां की गल करन तो पहले एक निक्की जी गल मैं थोड़ी झोली च रखदे हां, किधर बाद च मैं भुल ना जावां कि असी पंजाब दे सिर्फ 5% ज्यादा, 5% इस तो ज्यादा नहीं। ते इस 5% नूं घटाउण दी कोशिश जारी है हर पासे, सिर्फ 5%। ते 5% करके उन्होंने खतरा प्रतीत होता है भी 5% भी क्यों ज्यादा ने, ये 5% भी क्यों ज्यादा ने। तो उन्हां 5% दे उत्ते डोरे डाले जाते हैं, किसी नूं राधा स्वामी बनाउण दी, किसी नूं निरंकारी बनाउण दी, किसी दे अगों गुरु हरगोबिंद साहब ते गुरु गोबिंद सिंह जी की निंदा करके भी चलो गुरु हो सकता है तो सिर्फ गुरु नानक हो सकता है, बाकी नहीं। इस तरह की गल करके और बड़े वड्डे पैमाने बड़े वड्डे पद्धर पे और देश विदेश विच ये प्रचार होंदा है। बदकिस्मती है इस प्रचार का असी कोई बहुत वड्डे पद्धर पे विदेशों विच या देश के बाकी कोणियां च जवाब नहीं दे रहे। ते जवाब की खाक देना सी ते आपस में लड़े फिरते हैं। और जवाब की खाक देना है कि जब गुरु वाली वो गल साडे कोल उंजी मिट्टी पई है, जिहड़ी गल वो मिटाना चाहते हैं तो मिट्टी पई उंजी पहले। जीवदे नूं ते गोली नाल मारांगे, मुर्दे नूं मारन की लोड़ ही की है, उहनूं कट्टण दी की लोड़।
ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਅਦਕੀ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਮਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਸਤੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿਬਰ। ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿਬਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਣੀ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਵਾ ਛੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੌਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਤਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ। ਤੋ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੀਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਪਖੰਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਭ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਖੈਰ, ਕਿਧਰੇ ਨਿੰਦਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ, 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ऐसा असी देखते हैं। खैर, मुख्तसर करिए। गंगा सिंह कहने लगे, ये मां है ना थोड़ी? उन्होंने कहा, हाँ मेरी मां है, मैं रोजमर्रा की प्रेरणा इस गीता तो लेना। गंगा सिंह कहने लगे, मैनू भी सन्मान है इस ग्रंथ का, मैं निंदक नहीं। ये कीमती ग्रंथ है, इस देश की कीमती सौगात है, ऋषि व्यास की लिखी हुई है, असी कदर करते हैं। तुसी मां कहते हो, इसकी भी कदर करते हैं, पर जरा ये दसो कि यह गीता उचारण कित्थे हुई है, किहड़ी थां ते उचारण हुई है? इतिहास के खोजी इस गल नूं जानदे ने, मैदाने जंग विच उचारण हुई है।
कुरुक्षेत्र दे। अर्जन ने धनुष बाण सुट दिता सी, युधिष्ठिर ने तलवार सुट दिती सी, नकल सहदेव ते भीष्म ने अपने शस्त्र सुट दिते सन। अर्जन ने सीधा ही कह दिता, भगवान असी नहीं लड़ना। भाई क्यों नहीं लड़ना? तो अर्जन कहने लगा, ओ द्रोणाचार्य मेरा चचेरा भरा, ओ दुर्योधन मेरा चचेरा भरा, ओ द्रोणाचार्य मेरा गुरु, ओ भीष्म मेरा पितामा। अपनिਆਂ ਨੂੰ मारा, पितामे ਨੂੰ मारा, गुरु ਨੂੰ मारा, अपने भरा ਨੂੰ मारा, मैं नहीं लड़ना। हार होंदी है ते हार ही सही, नहीं कुछ मिलता ते ना ही सही, पर मैं अपनिਆਂ ਨੂੰ मारना नहीं। धनुष बाण सुट दिता। श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जन ठीक है, मैं मनदा है तेरे अपने ने, पर अपने जिस्म दे उत्ते कोई मवाद दे नाल भरिया होया फोड़ा निकल आवे, जहर नाल भरिया होया, बड़ी पीड़ा होवे और उस तो तड़पना बड़ी होवे तो चीरा देना पैंदा, वो मवाद कढनी पैंदी, भावें अपने ही जिस्म दी कढनी पैंदी। फोड़ा भावें अपना है तां भी चीरना पैंदा है। ये सारे तेरे अपने ने, पर देश धर्म नूं चमड़े फोड़े ने, चीर दे इन्हां नूं कोई पाप नहीं, मार दे इन्हां नूं कोई पाप नहीं। बुरे नूं बर्दाश्त कर लेना भी भले नूं सट मारना है, अंधेरे नूं बर्दाश्त कर लेना भी रोशनी वास्ते रस्ते बंद करने ने। कृष्ण ने गल समझाई, समझ आ गए। सुटिया होया धनुष बाण अर्जन ने फिर चुक लिया। घमसान का युद्ध होया ते महाभारत जो लिखी गई है उसके कथन अनुसार लखां बंदे कई दिन लड़ाई विच मौत के घाट उतरे, और कृष्ण दे दो बोलां करके। जब प्रिंसिपल गंगा सिंह ने कहा भी जिस गीता नूं तुसीं मां कहंदे हो वो तो मैदान जंग विच उचारण हुई है, ते निरी मैदान जंग विच नहीं उचारण हुई, गीता करके जंग हुई है। अगर गीता कृष्ण की रचना तो ना निकलती, लखां बंदे मौत के घाट नहीं उतरने सन। ते तुसीं इसे नूं मां कही जांदे हो, एक पासे अहिंसा परमो धर्म कहंदे हो, एक पासे गुरु गोबिंद सिंह नूं भुल्ला होया रहबर कहंदे हो, ते एक पासे उस गीता नूं मां कहंदे हो जिसने लखां बंदे मौत के घाट उतार दिते। कहंदे ने महात्मा गांधी ने जिहड़े बोल बोले, इस तो गुस्ताखी माफ उन्होंने शख्सियत झलकती पई हो की ने। उन्होंने कह दिता, प्रिंसिपल साहब ये जंग नहीं हुई, ये अंदर दी जंग का जिक्र है। महात्मा गांधी यही कहते होंगे सन हर थां ते, ये जंग नहीं हुई, ये अंदर दी जंग का जिक्र है। ते गंगा सिंह किथे चुप करने वाला सी, कहने लगे जे ये जंग नहीं हुई तो फिर ये भी कबूल करो कृष्ण नहीं होए, कोई अंदर दे कृष्ण की गल है। ये गीता बाहर नहीं उचारण हुई, कोई अंदर दी गीता की गल है। बाहर दी गीता मन लेंदे हो, बाहर दा कृष्ण मन लेंदे हो, बाहर दी महाभारत तो इनकारी हो, इस वास्ते कि सामने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं खंडन करने का एक मौका मिल जाता है। कहते इस तरह की दो झाड़ां जब गंगा सिंह ने पाईयां, महात्मा गांधी ने बहुत वड्डी सभा विच माफी मंगी सी भी मैथों भुल हुई, मैथों गलती हुई, मैनू इस तरह नहीं कहना चाहिए। क्योंकि गंगा सिंह ने मजबूर कर दिता, तू कबूल कर बाहर कृष्ण नहीं होया, अंदर ही है। बाहर गीता नहीं उच्चारण हुई, कोई अंदर ही हुई है, ये भी कबूल कर। अगर बाहर महाभारत नहीं होया तो बड़ी करारी चोट लगी। मैं इतनी अर्ज कर दिया कि छोटे रूप विच वड्डे रूप विच, छोटे मनुखां दे राही वड्डे मनुखां दे राही काफी समय तो ये घोल है साडे देश विच भी ये जीवदी जागदी कौम है, सिर चुकण वाली कौम है। गुरुआं दियां कोई बरकतां ने, कल नूं किधरे मालिक ना बन जान, इन्हां नूं गुलामां तो भी थल्ले कर छड्डो। ते कदी कदी मैनूं उन्हां लोकां ते तरस आ जांदा है जिन्हां ने खिड़े मत्थे गुलामी कबूल कर ली है, खिड़े मत्थे खुशी खुशी आप ही कह दिता भी ठीक है पा लो हथकड़ियां, हथकड़ियां नूं गहणे समझ लिया, ते जिहड़ा हुण हथकड़ियां नूं गहना समझ लवे
ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ, ਗਹਿਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਖੈਰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਇਹ ਰੋਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਲਬਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੈਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰੱਠਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਾਈ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਅਵਤਾਰਪਣਾ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਉਸਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਰਾਮ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਖਿਮਾ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ? ਕਿਆ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਵਤਾਰ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੋਪ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਵਣ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ। ਤਲਵਾਰ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਸੁਬਪਣਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਬਲੇ ਮੁਆਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤਸੁਬ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਟਕਾਰ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖੇਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ
उस वक्त मैनू चेते आया, मैं उसके सामने रखे। मैं कि तैनू पता होना चाहिए कि जिस राम नू इष्ट अपने विचारां ते अपनी लिखत राही प्रचार दे राही हिंदुस्तान विच प्रगटाया राम नू अवतार दे रूप विच, उस तुलसी दे कुछ बोल ने। रामायण की एक कथा है, राम दे जीवन विच घटी। सुग्रीव ते बाली दो भरा सन। बाली ने अपने छोटे भरा सुग्रीव की पत्नी तारा जबरन अपने कोल रख ली। सुग्रीव ने हथा कमजोर चला गया राम को, कहंदा भगवान मेरी मदद करो, मेरे नाल अन्याय होया, मेरे ते जुल्म होया। कहंदे इतनी गल सुन के राम आपे तबार हो गए। इतना अन्याय किया तेरे नाल वड्डे भरा ने, अच्छा उस दुष्ट नूं मैं जमीन ते नहीं रहन देना। कहना दरख्तां दी ओट विच छुप के बाण मारिया, बाली नूं लगया, बाली तड़पदा होया जमीन ते गिरिया। पर उसने वेख लिया कि मैनू मारन वाला कौन है। बोल पिया राम छुपण दी लोड़ नहीं, मैं वेख्या मैनू मारन वाला सुग्रीव नहीं बल्कि तुसी हो। श्री राम सामने आ गए, कहने लगे हाँ मैं मारिया। बाली कहंदा मैं ते सुनिया तुसी अवतारी पुरुष हो, ऋषि विशिष्ट दे चेले हो, संत हो, भगत हो, ते तुसी तीर चलाया और मैनू मार छड़िया, इन्ना वड्डा जुल्म कीता। राम कहंदे नहीं पुरखा, तैनू मार के ते मैं पुन खटिया बहुत वड्डा, तैनू मार के मैं सवाब दा काम कीता, धर्म दा काम कीता। बाली कहंदा भगवान बंदे नू मारना क्या धर्म है? राम कहने नहीं, बंदे नू मारना ते अधर्म है, पर तेरे वर्गे बंदे नू मार देना धर्म है, तेरे वर्गे बंदे नू मार देना पुण्य है, स्वाब है। तो राम दे बोला नू कवि तुलसी अपनी कविता च पेश कर देना। अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। अनज बधू छोटे भरा दी स्त्री, भगनी भैण, सुत नारी पुत्र दी नारी नू, अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। हे सठ हे मूर्ख गल सुन, कन्या नू भैण और छोटे भरा दी स्त्री, ये चारों ही कन्या के समान ने, ये चारों ही बच्चियां ने। अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। सिर्फ कन्या ही कन्या नहीं बल्कि नू भी कन्या, छोटे भरा दी जिहड़ी पत्नी है वह भी कन्या, उन्होंने भी कन्या का दर्जा देना चाहिए। अनज बधू भगनी सुत नारी, हे सठ ये कन्या समचारी। ताहे कुदृष्ट बिलोके जोई, ताहे बधे कछ पाप ना होई। इन्हां चारां नूं जिहड़ा भैड़ी दृष्टि नाल वेखे, राम कहंदे अगर मैं मार दियां मैनूं कोई पाप नहीं, मैं पुण्य खटिया, मैं धर्म का काम कीता। तू कह पिया कि मैं पाप कीता है, परमात्मा की दृष्टि च मैं कोई पाप नहीं कीता, मैं मनुखता के रस्ते च रोड़ा हटाया। कमाल की गल, एक वड्डा भरा छोटे भरा की पत्नी रख ले कि राम उसनों मार दें ते भारतवासी कहन सवाब का कम है, तुलसी भी कहे सवाब का कम है। ते जद हिंदुस्तान दीयां बच्चियां गजनी के बाजार विच टके टके विकदियां सन, उदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने तलवार चुक ली ते तुसी आखो गुरु ही नहीं है, वो अवतार ही नहीं है। एहसान फरामोशी की इंतहा हो गई, एहसान फरामोशी की हद हो गई। ऐ विचार सुनांदे होया मैनू अपना एक बचपना याद आया। मैं खालसा स्कूल का विद्यार्थी सी ते उत्थे साडे एक ज्ञानी टीचर सन, सानू गुरबाणी का पाठ सिखाते सन, ज्ञानी हरि सिंह जी, चंगी तरह मैनू याद आया। पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन अपनी आप बीती सुनाई। फ्रंटियर के इलाके डिस्ट्रिक्ट बन्नू तो थोड़ी जी दूरी ते एक पाड़ा चनार का इलाका है। लोकी
अक्सर गर्मियां के दिनों च उत्थे जाते सन, ठंडा इलाका होने करके। ज्ञानी हरी सिंह जी कहना मैं भी चला गया गर्मियां की छुट्टियां, 2 महीने दी छुट्टियां। झील सरोवर वगदे हुए झरने उत्थे आम ने। कहते एक सज्जन ते उसका छोटा जिहा बच्चा किसी सरोवर विच नहा रहे सन। नहांदियां नहांदियां बच्चा किधरे गहरे पानी च चला गया, डुबन लगा। ते प्यो ने शोर मचाया भी बचाओ मेरे बच्चे नूं, बच्चा गया, आप तैरना जानदा नहीं सी। दूरों कोई गालबन चीनी नस्ल का सिया टूरिस्ट उत्थे घुम रहा सी। कैमरा उसदे कोल फोटोआं वोटोआं लै रहा सी। उन्हें देखिया बच्चा डुबे और डुबन लगा, उन्हें भज के छाल मार दी ते डुबदे हुए बच्चे नूं कढ के लिया। प्यो ने अपने बच्चे नूं गल नाल लाया, छेती छेती उन्होंने कपड़े पवा के चल गया। ज्ञानी हरी सिंह कहते ने एक करिश्मा, एक गल, एक परोपकार का वह दृश्य उस सियाह का मैं अपनी अखां नाल वेखिया। पर उहदे चेहरे ते परेशानी बड़ी सी, इन्ना पुण्य का काम करके बेचैन हो गया सी। कपड़े उसदे भिज गए और कुछ भी उसने देरी नहीं की थी। ज्ञानी हरी सिंह कहते मैं जब जाके पूछया भी तू इतना बड़ा काम किया ते तेनू खुश होना चाहिए, तू मुरझा गया, तू बेचैन हो गया, परेशान हो गया, गल की है? वो आखन लगा साडे देश की सभ्यता है कि किसी का डिगया होया रुमाल भी चुक के दे दई है, वो थैंक्स जरूर करता है, धन्यवाद करता है। ते मैं इतने गहरे पानी च अपनी जिंदगी नूं हथेली ते रख के इहदे बच्चे नूं कढ के लिया, उन्हें मेरी तरफ देखिया तक भी नहीं, अपने बच्चे की बांह पकड़ के चला गया, मेरा शुक्रिया ही धन्यवाद भी नहीं। ज्ञानी हरी सिंह कहते ने कि मैं जवाब दिता भी तू एक डुबदा होया बच्चा बचाया, बदले विच तेरा धन्यवाद नहीं होया ते तू दुखी है, बेचैन है। पर यह वो कौम है, इसने उन्हों का भी धन्यवाद नहीं किया जिसने इन्हों के बच्चे बचाने की खातर अपने बच्चे खुआ दिते सन। इन्हों का धर्म बचाने की खातर अपना पिता शहीद करा दिता सी, इन्होंने उसका धन्यवाद नहीं किया, तेरा की खाक करनगे। एहसान फरामोशी की इंतहा है। दिल्ली के चांदनी चौंक दे कोई अपना खून ना डोलदा हिंदुस्तानियों के मत्थे का तिलक नहीं बनना सी। कोई चलते हुए श्वासां की डोरी ना रोकदा तोड़दा जनेऊ नहीं बनना सी। पर कौन मने? मैं दिल्ली के गांधी ग्राउंड विच स्पष्ट रूप विच कहे गुरपुरब सानू नहीं मनाना चाहिए, गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी गुरपुरब। ये वो मना जिन्हां दे मत्थे ते तिलक है, जिन्हां ने जनेऊ पा के रखे है, असी सहयोगी बनीए। मनान ओ क्यों कि इतना वड्डा जिहड़ा साका होया ते तिलक जंजूरा खा प्रभ तांका, किनों बड़ो कलू मैं साका। किसने अपने प्राण दिते, किसने अपना खून डोलिया, मत्थे दा तिलक बनिया, गले दा जनेऊ बनिया, उन्होंने पता ही ना होवे कि अज दे दिन साका की घटिया इस चांदनी चौंक दे। एहसान फरामोशी की इंतहा नहीं जान और बदले दे उस इस एहसान नूं करीबन करीबन मैं देखदा मिटाण की ही कोशिश की जाती है। इत्थे दाद देनी पैगी कुछ लेखकां नूं, खास करके लाला दौलत राय आर्या समाज का यह उग्गा प्रचारक से। 1906 दे लाहौर विच इसने एक किताब लिखी सी, उसने बड़ा तहलका मचाया सी। ये फिर दोबारा छपी सी 300 साला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव दे दिल्ली छपी सी। दिल्ली दी सिंह सभावां ने मिल के फिर कोशिश की थी कि छपनी चाहिए। उस किताब विच लाला दौलत राय ने कमाल कर दिता है। वो कहता है रूहे जमीन दे थे अगर कोई अवतार आया है तो सिर्फ गुरु गोबिंद है। कहता मैं हाँ आर्या समाजी, मेरा इष्ट स्वामी दयानंद है और मैं प्रचार करना आर्या समाज का, पर मैं मजबूर हाँ इन्ने लफ्ज कहण दे कि रूहे जमीन दे
अगर कोई श्रेष्ठ अवतारी कला लैके आया है तो वह गुरु गोबिंद सिंह ने। दिबाचा विच भूमिका विच वो शब्द लिखता है कि कुदरत की जद सारी सियाणप इकट्ठी हुई, परमात्मा की जद सारी मेहनत इकट्ठी हुई, ते परमात्मा की जद सारी शक्ति का संग्रह होया ते बने गुरु गोबिंद सिंह। वो इंज कहंदा हे ईश्वर, तू ऐसा मनुख भी बना सकदा, ऐसे मनुख की घाड़त भी घड़ सकदा है जिहदी तुलना किसे नाल ना दिती जाए। कि तेरी कारीगरी नूं दात देनी पैंदी है, तेरी सियाणप नूं दात देनी पैंदी है, तेरी बख्शिश नूं दात देनी पैंदी। हुण मेरे जज्बे के तहत ये गल्लां कर देनियां कोई बहुत वड्डी गल नहीं, पर उन्हें दलीलां दित्तियां ने। वो दलीलां मैं तुहाडे सामने रखां, किसी सिख विद्वान के दिमाग च नहीं आईयां, और दात देनी पैगी कि उसने अपने ढंग नाल एक खोज की। वो कहंदा जद मैं रामायण की जंग वेखदा, बई रामायण की जंग क्यों होई? कहंदा कारण ने दो इस्त्रियां, और कुछ नहीं। रावण दी भैन है सुरूपनखा। सुरूपनखा का मतलब है जिहदे नक्श निगार बहुत अच्छे हैं, सुभाव के मुताबिक ते शरीरक क्रिया के मुताबिक पुराने समय च नाम दिते जाते सन। सुरूपनखा जिहदे नक्श निगार बहुत अच्छे सन। उन्हें लक्ष्मण नूं वेखिया ते कहण लगी, लक्ष्मण तू मेरे नाल विआह कर ले। उन्हां दिनां गंधर्व विआह होंदे सन। स्वयंवर, स्वयंवर के अखरी अर्थ पता है? स्वयंवर, आप वर चुनना, इसदा होर कोई मतलब नहीं। स्वयंवर, स्वयंवर चुनना, आप वर चुनना, इहदी खुल सी समाज दे विच उन्हां दिनां च, हिंदुस्तान दे विच। सहजे सहजे जो महापुरुषों ने देखा कि स्वयं वर चुनन दे बच्ची बच्चा गलती कर जाते हैं। क्यों? जज्बे ही जज्बे होंदे ने, ना कोल जोश ही जोश होंदा है, होश ते होंदा नहीं। तो जोश के तहत भुल्लां हो जांदियां, गलतियां हो जांदियां। इस वास्ते जिंदगी दीयां ठोकरां खा के जिन्हां कोल तजर्बे ज्यादा ने, मां बाप चोण करन, बुजुर्ग चोण करन। यह प्रथा भारत वासियों ने बनाई क्योंकि उत्थे जवानां कोल निरा ही जोश है। तो स्वयंवर करीबन करीबन हिंदुस्तान की सभ्यता ते पूरा ना उतरिया, आखिर इसमें तिलांजलि देनी गई। लेकिन उस जमाने स्वयंवर की खुल सी, ते स्वयंवर स्वयं विआह किस तरह हो जाता सी? एक दूजे के गले च माला पा देनी, गल खत्म, और कुछ नहीं होंदा सी। स्वयंवर वर हो गए, एक दूजे के वर की चुनौती हो गई। कहंदे ने माला सुरूपनखा लक्ष्मण के गल दे पाण लगी सी। लक्ष्मण एक पासे हो गया, कहंदा देवी गल सुन, मैं ता जिंदगी अणविआया रहन का प्रण कीता है, करण गृहस्थी बननी नहीं। तू मेरे भरा नाल गल कर सकदी है। मजाक विच गया, हालांकि भरा तां विआया होया नाल सीता, मजाक विच गल की। किसी स्त्री नाल मजाक करना इत्थों अवगुण शुरू हो जाते। अवल मजाक किसी नाल भी करना, मजाक विच भी बंदा चोट ही पहुंचांदा, और की है। खैर मजाक होवे सिर्फ हासे नूं जन्म देण वास्ते ते गल समझ च आउंदी है। कई बंदे ऐसे ने सीधी चोट नहीं पहुंचा सकते, मजाक दे चोट पहुंचाते हैं। तो मजाक दी बड़ी चोट की गई। सुरूपनखा राम कोल चली गई ते कहन लगे तू मैनू विआह ले। राम कहन लगे नहीं, मैं तो गृहस्थी हाँ, मेरी पत्नी मेरे नाल है, तू मेरे भरा नाल गल कर ले। वो ज्यों लक्ष्मण नाल गल करदी उन्हें गुस्से च उहदी नक कट दी। हुण ये किहड़ा संत बना है कि किसी स्त्री की नक कट दी जाए। वो रोंदी हुई अपने भरा कोल गई, बई ऐ होया मेरे नाल। रावण कहंदा फिक्र ना कर, कि तेरी नक नहीं कट्टी, मेरी नक कट्टी। आम बंदा हुंदा उन्हें भी गुस्से च आना सी, उते बादशाह से, उते राजा से। कहंदा हुण मैं राम दी नक कटनी, तो किसी दी पत्नी चुक के लियाना अगली दी नक कटनी गल नहीं। लाला दौलत राय कहंदे ने इस झगड़े की बुनियाद दो स्त्रियां ने, सुरूपनखा ते सीता, और कुछ नहीं। और पता अगे उसने की दलीलां दित्तियां ना, वो कहंदा चार वेदां दा पाठी रावण है, चार वेदां दा पाठी राम है। शिवजी का उपासक रावण है, शिवजी का उपासक राम। जिन्होंने इतिहास पढ़िया उन्होंने पता, रामेश्वरम दे शिवजी की पूजा की है राम ने, ते शिवजी इष्ट सी रावण का। लाला दौलत राय कहते दोहां का इष्ट इको है।
दोवें चार वेदां दे पाठी ने, दोवां दा धर्म एक है, दोवें राजे ने। जंग दा कारण, लड़ाई दा कारण दो इस्त्रियां ने, होर कुछ नहीं। और कहंदा इसे दो इस्त्रियां दी जंग दे आले दुआले समुची रामायण घूमदी, समुचे राम दा जीवन घूमदा। गल उसने इत्थे नहीं मुकाई, जरूर पढ़नी। इस उर्दू की किताब नूं इंग्लैंड के सिंघां ने फिर पंजाबी रूप दे के छापिया है। किताब का नाम है सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, आज कलम लाला दौलत राय। सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह। और जिस दिन ये किताब मैनू लभी, गालबन कोई 9-10 साल पुरानी गल है, आशश कर उठी मेरी आत्मा कि इस ढंग नाल भी लिखिया जा सकता है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का चित्रण इस ढंग नाल भी किया जा सकता है। उदों दाद में दिती, मैं कि ठीक है, भावें तू आर्या समाज का प्रचारक है, पर सिख प्रचारक भी इस ढंग नाल सोच नहीं सके, विचार नहीं सके। वो अगे लिखता है, कहता जब मैं महाभारत की जंग का अध्ययन करदा, महाभारत, तो उस जंग का कारण भी एक स्त्री है, वो है द्रौपदी, और कुछ नहीं। ये जंग नहीं होनी सी। वो उदाहरण देता है, कहते द्रौपदी चित्रकला, संगीत कला ते कविता की कला विच माहिर सी, कवि कवित्री भी सी, संगीतकार भी सी ते चित्रकार भी सी। तीन गल्लां इहदे कोल सन सुभाव। पांडुआं ने नवा महल बनाया बड़ा खूबसूरत, ते दावत दिती कौरवां नूं भी तुसीं साडे घर आओ ते भोजन छको। आले दुआले दे ऋषि मुनि, जागीरदार, धनाड़, राजकुमार, राजियां नूं दावत दिती गई महल दे विच। दुर्योधन भी बन ठण के आया, ते जिहड़ी द्रौपदी सी उसने घर नूं सजाया बड़ा, जमीन दे उत्ते इस ढंग दे रंग बिखेर दिते, जमीन सरोवर लगदी सी। अगे बनया होया सरोवर सी, उहदे उत्ते इस ढंग दा रंग पा दिता, वो जमीन लगे। चित्रकार बड़ी सी, पानी दे विच बेल बूटे बना दिते ते जमीन दे उत्ते सरोवर बना दिता। अखां नूं धोखा लगे, इस ढंग दा बनाया। कहंदे जो दुर्योधन आया ना, ते रस्ते च पानी देख के, हुण पानी है नहीं सी, रंग सी, उन्हें संभल के पैर रखे, ते ज्यों देखदा पैरां नाल रंग लग गया है ते सरोवर नहीं है, निश्चिंत होकर चलन लगते। अगे पानी दे उत्ते इस ढंग दे बेल बूटे बनाए गए सन, जमीन लग रही सी, ज्यों उसने पैर रखे ते डुब गया। वो जिहड़ी चित्रकारी सारे दिन च कीती सी ना, वो सारी खराब हो गई ते द्रौपदी औखी हो गई। वो कहण लगी अंधे दा अंधा ही है। दुर्योधन दा पिता अंधा सी, धरतराष्ट्र नेत्रहीन सी, अंधा सी। कहण लगी ये अंधे दा कंबख्त अंधा ही है। हुण ये बचन चोट कर गए, कौड़े सन। ठीक है, प्यो अंधा जरूर सी, पर गल इतनी कुरख्त सी, हिरदे चोट कर गई। दुर्योधन ने उत्थे भोजन नहीं छकिया, महफिल विच नहीं बैठा। कहने लगा द्रौपदी मैं हुण तैनूं दसांगा कि अंधे दा अंधा की करदा है। इन्नी गल कह के चला। कुछ मुद्दत बाद उन्हें पांडवां नूं जुआ खेडण ते मजबूर कर दिता। कि मैं भारत के ब्राह्मणों को पुछदा हुंदा, बाहर भी कभी कोई हिंदू जगत का आलम मिल जाए जरूर पुछीदा है भी तुसीं कहंदे हो युधिष्ठिर है धर्म पुत्र, ते तुहाडा धर्म पुत्र ते जुआ पिया खेडदा है। पता की जवाब देना, उते जी दुर्योधन ने मजबूर किया तां जुआ खेडे, थोड़ी खेड। ते मैं किस तरह कोई भी कह सकता है मैं पीनी थोड़ी सी, अगले ने मजबूर किया तां पी लई। मैं कतल थोड़ी करना सी, अगले ने मजबूर किया तां कतल कर छड़िया। नहीं, ये तो हुजतां ने, ये तो गल्लां ने। जिन्हें नहीं जुआ खेडना, दुनिया की कोई ताकत उसनूं जुआरी नहीं बना सकती। जिसने नहीं शराब पीनी, क्षमा करनी, दुनिया की कोई ताकत उसनूं शराबी नहीं बना सकती। खुद अंदर जुए खेडण की जरूर भावना होगी। जब इतनी गल मैं कहना तो कौड़ी बहुत लगती उन्होंने। कहते सिख प्रचारक इस तरह बोलते हैं। मैं कहनी तू जवाब दे, असी वापस ले लेने अपने शब्द वचन वापस ले लेने। तो उसका जवाब दे कि संत जुआ खेडदा,
धर्म पुत्र जुआ खेड़दा ते जे धर्म पुत्र जुआ खेड़दा है तां अधर्मी की करदे होणगे। खैर जुआ खेड़े, जुए दे विच उहने धन हारिया कि जद सारा धन हार गया फिर राजपाठ हारिया। जद राजपाठ हार गया तो फिर महल हार गया जिहड़ा नवां बनाया सी, ते जद महल हार गया तो तन दे गहने हार गया जिहड़े पहने हुए संसारियां ने, सिर दा ताज हार गया। सब कुछ जद हार गया तो उठ के जान लगे। दुर्योधन ने बांह पकड़ी, कहंदा नहीं किथे जाना है, होर दा ते ला। युधिष्ठिर कहंदा मेरे कोल हुण होर कुछ है नहीं। दुर्योधन कहंदा एक कीमती चीज ते है, वो तूं दा ते लाई नहीं। ओ की द्रौपदी, ओनू भी ला। तो द्रौपदी भी एक चीज है कि जिती जा सकती है, हारी जा सकती, खरीदी जा सकती है, वेची जा सकती है। ये धर्म पुत्र की दृष्टि है, ये धर्म पुत्र की नजर है। प्राचीन समय तो स्त्री जगत नाल कोई बहुता इंसाफ नहीं होया, ते जिस ढंग की बगावत स्त्री ने यूरोप की दुनिया च की वो भी कोई ठीक नहीं। इंसाफ तो नहीं होया क्योंकि समुची दुनिया दे च वख-वख बाजार होंदे सन भी ये कपड़े का बाजार है, ये सराफा बाजार है, ये लोहे का बाजार है, ये स्त्रियां का बाजार है। समुची दुनिया जिथे लोहा खरीदिया जाता सी, बेचिया जाता सी, सोना खरीदिया जाता सी, बेचिया जाता सी, स्त्री खरीदी जाती सी, बेची जाती सी। और जे स्त्री जुए विच हार दी जाए तो ये धन है और की एक चीज है, जीती जा सकती, खरीदी जा सकती, इस तो ज्यादा और की है। मनुख की मनोवृत्ति आदि काल तो ऐसी रही है कि आम मनुखों का तो कहना ही छो। धर्म पुत्र युधिष्ठिर धर्म पुत्र जुए दे द्रौपदी भी हार गया। ते जब द्रौपदी नूं हारिया ते उदों सही मैनिया च दुर्योधन ने अपनी जित महसूस की। उन्हें दुशासन नूं आवाज मारी, क्या उसनूं केसां तो पकड़ के थे खिंच के लिया जो मैनूं कहंदी सी अंधे दा अंधा। उन्हों मैं दसां अंधे दा अंधा की करदा। वो केसां तो पकड़ के खिंच के लिया। भाई साहब भाई गुरदास जी ने लिखिया सा मत्थे वाल दरोपता केसां नूं खिंच के लिया, केसां नाल पकड़ के घसीट के सभा विच लिआंदे। और सभा की रूपरेखा भी मैं थोड़े सामने रखा, हैरान रह जाओगे। उस सभा विच कर्ण बैठा है, भीषण पितामह बैठा है, द्रोणाचार्य बैठा है, वक्त के पंडित बैठे ने, वक्त के गुरु बैठे ने, वक्त के संत बैठे ने उस सभा विच। जब दुर्योधन ने दुशासन नूं कहा कि इसनूं बड़ी महफिल विच लगन कर, तां वो वेखदी है पहले अपने पांडवों की तरफ बई मेरी हिफाजत करनगे, पर नहीं, वो सिर ढा के बैठे से। फिर देख लिए भीषम पितामह की तरफ बई अजोके समय का सब तो बड़ा संत है, ये इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं होने देगा। सिर्फ 2-4 मिनट में खड़े हो लेना। पर उत्थे भीषम पितामह भी नहीं बोले, सिर ढा के जो बैठा है नहीं बोले। फिर सोच लिए गुरु बैठा है, द्रोणाचार्य गुरु बैठा है, ये अनर्थ नहीं होने देगा। पर ज्यों देख लिए कि गुरु ने भी सिर नीवा कर छड़िया। तुसी खुद अंदाजा लगाओ, एक निक्के जिहा जुल्म के खिलाफ गुरु नहीं बोल सकता, संत नहीं बोल सकता, ते आम दुनिया की की हालत होगी। और भारत नूं शेर बनाया जिस गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, उसका धन्यवाद नहीं, जिन्हों बोलने की जांच आ गई है जालम के सामने, दुराचारी के सामने, ठग के सामने, औरंगजेब नाल भी मत्था मारन की जांच आ गई है। ऐसे सूरबीर देश विच पैदा कर देते। लाला दौलत राय लिखते हैं कि यह जंग हुई एक स्त्री के कारण। श्री कृष्ण ने बचाया उस वक्त, द्रौपदी का दामन पकड़िया और अनर्थ नहीं होने देता। लेकिन इतनी गल तो मननी पेगी कि इतना वड्डा युद्ध होया एक स्त्री के कारण। द्रौपदी दोहां का गुरु एक है, जिहड़ा गुरु पांडवां दा उही कौरवां दा, दोहां का मजहब इको है, दोवें सनातनी मत के पुजारी ने, दोहां का गुरु एक है, दोवें राजे ने, दोहां के अंदर होर कोई मतभेद नहीं, एक स्त्री तो झगड़ा खड़ा है। लाला दौलत राय कहते जब मैं आमदा गुरु गोबिंद सिंह जी से सोचदा कि क्यों झगड़े, क्यों तलवार चुक ली, क्यों बंदूक नाल गल करते हैं, क्यों तोपां अगे डीड़ दी,
क्यों भगतां नूं सिपाही बना छड़िया? कहंदा जद मैं सोचदा इस ढंग नाल कारण की है, कहंदा कारण कोई इस्त्री ते दिखाई देंदी नहीं। फिर हिंदुस्तान के ऋषि मुनि लिखते ने कि जर जमीन जोरू ही जंग का कारण हो सकते ने, होर नहीं। जर तो इत्थे कारण धन भी नहीं है, कारण जमीन भी नहीं है, कारण इस्त्री भी नहीं है। फिर लाला दौलत राय कहते एक पासे हिंदुस्तान का बादशाह, एक पासे फकीर जिसके कोल कुछ भी नहीं है। इहदे कोल एक को लंबी चौड़ी सेना है, एक कोल गिणती दे सिपाही ने, गिणती दे सिंह ने, एक दे खजाने धन नाल भरे पे ने, ते एक दे सिंघां कोल पेट भरन वास्ते रोटियां भी कोई नहीं। भुखे ने सिंह, और भुखे ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद कबूलिया, गुरस ने शिकारे कुनद चेहल नर के देह लग बरायत बरो बेखबर। मेरे 40 भुखे सिंह की करना, तू इतनी लखां दी सेना ले आया। मेरे भुखे सिंह लड़े ने सूरबीरां की तरह। लाला दौलत राय कहने ने एक पासे एक फकीर है, एक पासे एक बादशाह, एक दे खजाने भरे पे ने, एक दे सिंघां वास्ते भी रोटी कोई नहीं। जंग का कारण की है? स्त्री, जमीन या जर, धन? कहंदा नहीं, जंग का कारण सी मजलूमां दी रखिया, देश की रखिया, धर्म की रखिया। कहंदा धर्म की खातर, देश की खातर ते देश की सभ्यता की खातर भी लड़ाई हो सकती है। कहंदा रूहे जमीन दे च पहला ही सूरमा मिलता है, होर कोई नहीं। लाला दौलत राय इस तरह का महापुरुष ये पहले ही मिल रहा है जो लड़िया सिर्फ दूजियां वास्ते। रुखां तले रात कट के लोगां वास्ते महलां दे सुपने वेखदा रहा, अपने बच्चे कुहा के लोगां दे बच्चे बचाए, खुद यतीम बन के दूजियां नूं यतीमी की हालत तो बचाया। लाला दौलत राय इत्थे स्पष्ट रूप विच कहंदे कि अवतारी जगत विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ते हुण एक मुस्लिम शायर की गल कह के मैं समाप्ति करा कि मुस्लिम शायर है अला यार खां योगी। इसने 2 किताबां लिखियां ने, गंजे शहीदां, शहीदाने वफा, और ये दोवें गुरुद्वारा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी ने छाप दित्तियां ने। दोवें उर्दू विच ने, पर एक पंजाबी लिपि विच छापियां गईयां ने, क्योंकि उर्दू के पढ़न वाले घट रहे हैं। उत्थे अला यार खां जोगी लिखदा है, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है। कहंदा दुनिया के आलम विद्वान बैठ के जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इंसाफ पसंदी की दृष्टि नाल वेखन, नहीं वेख्या किसी ने, बड़े बड़े महात्मा लोगों ने नहीं वेख्या, आम बंदियां दे कहना ही की। अला यार खां कहंदे अगर इंसाफ की दृष्टि दे नाल कोई वेखे, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं। फिर गुरु गोबिंद सिंह का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। पर इत्थे सवाल खड़ा किया जा सकता है, तू मुस्लिम, तू मुसलमान, अला यार खां, तू गुरु गोबिंद सिंह बारे ऐसा लिखदा है, किधरे खुशामद ते नहीं कर रहा, लोभ वस होके ते नहीं कह रहा, या डर के ते नहीं कह रहा। पता इसकी अगली नज़म की है, गंजे शहीदां दी। कहंदा अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है। कसम चुकदा, अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। कहंदा हाथ विच शायर की कलम है, पर गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा लिखा कलम टुट जाती है, कुछ भी नहीं, मैं लिख नहीं सकता। और इस सच्चाई के उत्ते बोल पूरे उतरते हैं कि जगत के आलमा ने इंसाफ पसंदी की दृष्टि के नाल गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं वेख्या, उस महान सूरे सतगुरु को नहीं वेख्या जिसने जीवन का ढंग दसिया भी जीवना है तो किस ढंग नाल जीवना, मरना है तो किस ढंग नाल मरना है, अणख किस नूं कहंदे ने, गैरत किस नूं कहंदे ने,
भारत वासियों के अंदर फूकी। अले यार खां कहते ने अगर कोई इंसाफ करेगा तो इस नतीजे ते पहुंचेगा, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मंझधार को या लहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन सागर की तरह, लहरां का जिक्र करिए, किनारियां का जिक्र करिए, गहराई का जिक्र करिए। शाद मोहम्मद लतीफ कहता है मैं लिखण लगा सी गुरु गोबिंद सिंह जी की गल हुण नहीं लिखनी। बई क्यों? कहते ने मैं लिखण लगा सी एक बादशाह की जीवन कथा, जो बैठा है सिंघासन ते चौर होंदी पई है, लोकी नजराने रखते पे ने। एक बादशाह की गल लिखण लगा सी, पर मैं की देखदा हाथ दे च कलम है, जमुना का किनारा है, पौंटे की धरती है, बहुत गहरियां सोचां दे च ओही बादशाह डुबिया होया है, कुछ लिखदा पिया है। उदों प्रतीत होया कि कोई कवि है, ये ते कोई शायर है। फिर कहंदे ने मैं देखिया कि हाथ दे च माला है, रसना ते धुन अल्लाह दी है, परमात्मा दी है। उदों प्रतीत होया कोई जोगी है, कोई संत है, कोई अभ्यासी है। कहंदा मैदान जंग च मैं तलवार चलांदा होया वेखिया, उदों प्रतीत होया कोई सिपाही है। ते फिर मैं देखिया बड़ा धन लुटांदा होया, उदों प्रतीत होया कोई दानी है, कोई दाता है। ते मैं देखिया पंजां दे अगों हाथ जोड़ के अमृत पिया मंगदा सी, उदों प्रतीत होया कोई मंगता है, कोई भिखारी है। कहंदा किस दा लिखां, किस रूप की कथा लिखां? मंगते दी, बादशाह दी, सूरमे दी, कवि दी, संत दी या संसारी दी, दानी दी? किसकी कथा लिखां? अनेका रूप ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहते हैं हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह जो बादशाह होंदे ने वो दरवेश नहीं होंदे, जो दरवेश होंदे ने वो बादशाह नहीं होंदे। नंद लाल कहते पहली दफा दुनिया ते वो बंदा आया जो बादशाह भी है ते दरवेश भी है। और लाला दौलत राय कहते अवतारी दुनिया दे पहली दफा ऐसा मनुख आया जिहदे आले दुआले बाकी दे अवतारां दी परिक्रमा कराई जा सकदी। ते लाला दौलत राय दे बोल, ये लाला दौलत राय दियां लिखतां अला यार खां ते दौलत राय नूं सामने रख के मैं सारियां विचारां तुहाडे सामने रखियां। सिख जगत दे इतिहासकारां ने ते बहुत कुछ लिखिया, उन्हां दी कलम तो कुर्बान जाइए, उन्हां दे दिमाग तो कुर्बान जाइए। पर मैं अर्ज करदा पिया अनमतियां ने भी सच्चाई नूं कबूलिया, अनमतियां ने भी इस गल नूं कबूलिया। और ये राधा स्वामी और इस तरह के होर बंदे पता अजकल की पै कहंदे ने तीर तलवार चलाण वाले गुरु नहीं होया करते, इंज पै कहंदे ने पंजाब दे भोले भाले सिंह लपेट के चल जाते। हुकूमत के कुछ पिट्ठू भी ऐसा कहने जो तोप ते बंदूक की गल करे वो संत नहीं होया करता, वो तो एक सिपाही है। ठीक है महाराणा प्रताप का दर्जा दिता जा सकता है, पर मैं इतनी अर्ज करा जो हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप को दर्जा दिता गया है, जो शिवाजी मराठे को दर्जा दिता गया, उतना दर्जा भी गुरु गोबिंद सिंह जी को नहीं दिता गया। ये भी मैं अर्ज कर दें, उतना भी नहीं, उतनी गल भी कोई नहीं। इतनी वड्डी बेइंसाफी उस महाबली सूरमे नाल है जिसने देश के देश की संस्कृति की खातर अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना सब कुछ निछावर किया। भगत कबीर की एक पंक्ति को आधार बना के मैं विचारां थोड़े सामने रखियां। अब ते जबाए पृथ्वी आकाशा, धरती तो निर्माणता सीखनी है, पवन तो पवित्रता सीखनी, फुर्तीलापन सीखना है, पानी तो पवित्रता सीखनी है, आकाश तो समान दृष्टि सीखनी है, पर अगन तो जोश लेना है, वो भी साडे अंदर है। अग साडे अंदर ते पुरखा जोश भी तेरे अंदर होना। ते तू मुर्दा है ते अणक ते जोश ना रहा ते तू आध्यात्मिक तौर पर मुर्दा है और की मर गया। अग अंदर ठंडी पै गई तो कह देना ते मर गया, ते जोश अंदर ठंडा पै गया, अणक अंदर नहीं रही तो मर चुके, मुर्दा बिल्कुल मर चुके। ठीक है, माड़ा जिया भी श्वास चलता होवे ना, माड़ा जिया तां भी वैद कहता कोई गल नहीं, मरिया नहीं है। माड़ी जी भी नबज चलती होवे ते कहना पैंदा हाँ, तो मैं देखदा कईयां दे अंदर बिल्कुल माड़ी जी नबज चलती है। शायद सतगुरु की बाणी इन्हां सुरजीत कर दे, जीवन दे दे। माड़ा जिहा किधरे श्वास लेंदे ने हिटकी भर के, जिवें मरण के किनारे आउंदा, शायद सतगुरु मेहर करे, बख्शिश करे, श्वास चल पैण
पर गुस्ताखी माफ कुछ बिल्कुल ठंडे पै गए, मुर्दा ही हो गए, कोई श्वास कोई नहीं, कोई नब्ज नहीं चलती पई। साहब मेहर करन, बख्शिश करन कि श्वास अणख दे चलते रहन, ये गर्मी साडे अंदर बनी रहे, ये जोश साडे अंदर बना रहे। भगत कबीर जी महाराज दे के बोल ने, हालांकि वह संत ने, भगत ने, आपनू पता होवे सिकंदर लोधी नाल टक्कर लई सी कबीर ने, बड़ी जबरदस्त। और जेड़े जेड़े इस तरह के हम ख्याल ने उन्हें भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे च, वरना हजारां भगत होए ने हिंदुस्तान दे, होर किसी नूं नेड़े नहीं आण दिता गया। इतनी मैरिज करदे जो गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के विचारां नाल सहमत ने, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज की विचारधारा के मालक ने। भगत कबीर कहते हैं, बंदे तू निर्माण जरूर बन क्योंकि तेरे अंदर धरती है, पर जोश भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर अग है, पवित्रता भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर पानी है, फुर्तीलापन भी चाहिए क्योंकि तेरे अंदर हवा है, पवन है, और समान दृष्टि भी चाहिए है क्योंकि तेरे अंदर आकाश तक है। और समान दृष्टि की इंतहा कर दी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने। भाई कन्हैया नूं पकड़ के लिया गया और सिख कहते महाराज साडे विच गद्दार है, असीं मार मार के गिरांदे हैं, पानी पिला के फिर खड़ा कर देंगे। साहब कहते ऐसा क्यों? कन्हैया कहता पातशाह समान दृष्टि वध गई, हर पासे तू ही दिखाई देना, और की आकाश का तक वध गया। साहिबा ने जेब चो मरम की डब्बी कढ़ी, आख्या पुरखा तू निरा पानी ना पिलाया कर, मरम पट्टी भी करे। रेड क्रॉस के बानी नूं ते असीं दाद दई जांदे हां, पर उसका जिक्र नहीं करते। जिसने कहा कि मैदान जंग च भी अगर कोई गिर जाए पानी पिला, मरम पट्टी कर, उसकी कोई गल नहीं करते, संसार में कोई गल नहीं की। खैर साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेरा वरतान पंज तत्तां दा जिहड़ा बनया है साडा पुतला है, साडे कोल पंजे तत्त होवन। ऐसा ना हो कि असीं ठंडे पै जाइए, अग ठंडी पै गई ना तो सब कुछ गया। मुर्दे नूं फिर घर विच कोई थां नहीं है, मुर्दे नूं कब्रिस्तान ले जाना पैंदा है, शमशान घाट ले जाना पैंदा है, साड़ना पैंदा है, फूकना पैंदा है। जिहदी अणख ही मर गई, जिहदी खुददारी मर गई, जो अंदरों ही मर गया, क्षमा करनी फिर उसदे वास्ते कोई थां कोई नहीं, वो तो मुर्दा ही है, वो मरगर घाट विच, वो तो जीवदे ही मुर्दा है। एक जीवदे जागदे मनुखां वास्ते घर विच थां आउंदी है, जिन्हां दे अंदर अणख है संसार विच उन्हां वास्ते ही थां है, मुर्दा कौमां वास्ते नहीं, मुर्दा बंदियां वास्ते नहीं। मेरे पातशाह बख्शिश करन कि जोश आपकी झोली च पावन, ताकि जीवन का ढंग सानू आ जाए। बहुत सारा समा मैं थोड़ा लै गया, खिमा की याचना और समूह प्रोग्राम जिहड़ा है वो सिकत्तर साहब ने तुहानू सरवण करा दिता है। एक हफ्ता मैं थोड़ी हाजरी भर के मैं इत्थों फिर रुखसत लैनी है, ते टोरंटो कोई 2 हफ्ते ठहर के मैं वापस चले जाना इंडिया। वो 8 तारीख मंडे तो 14 तारीख तक थोड़े चरण लगातार मैं इत्थे परसांगा। उस दौरान गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश उत्सव मनाया जाएगा। हिंदुस्तान में बड़े वड्डे पद्धर से थां थां ते मनाया जाता है। कोशिश करांगा कि उन्हां दिनां गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की कुछ महानता मैं तुहाडे सामने सिलसिलावार लड़ीवार रख सकां, क्योंकि जिस पातशाह का तुसीं पुरब मनाना है, साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का, जो साडे मौजूदा गुरु ने और जो साडे मौजूदा रहबर ने और जुगो जुग अटल सानू प्रेरणा देने वाले ने, उन्हां दा पुरब तुसीं इतने वड्डे धूमधाम नाल मनाना है कि थानू ये बोध हो जाए हर एक नूं कि साडे मौजूदा गुरु गुरु ग्रंथ साहब ने और यही जुगो जुग अटल साडे रहबर ने बड़े उत्साह नाल इस पुरब नूं मनाना है और बड़ी श्रद्धा दे नाल इस पुरब नूं मनाना है। 8 तारीख फिर तुहाडे दर्शन करांगे। जिंदगी रही और सतगुरु ने बख्शिश की थी, फिर गुरमतियां गल्लां तुहाडे सामने रखांगे। समा कुछ ज्यादा हो गया, इस वास्ते मैं हाथ जोड़ के खिमा दा जा चुका। वाहिगुरू जी का खालसा।